Hello everyone, this is Jasleen. Today's video is for those who are planning to quit their jobs or looking for a switch or a change in a career. My dear viewers, many a times we come in across a crossroad. हम लोग बहुत बार लाइफ में ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहां पे हमें कोई बेटर वे आउट नहीं दिखता। जहां पे हम हैं वहां हम स्टक फील कर रहे हैं। वहां पे हम ग्रोथ नहीं देख पा रहे या इंटरनली जो हमारी स्ट्रगल्स चलते हैं, क्या करें, है तो पर अच्छा नहीं लग रहा। बट इस एक जॉब की वजह से मेरी बहुत सारी जो चीजें हैं, माई बिल्स आर टेकन केयर ऑफ, माई फंड्स आर वेल टेकन केयर ऑफ, बट यू आर नॉट हैप्पी। दिस लॉट ऑफ स्ट्रगल इंटरनली। वो स्ट्रगल कैसा होता है? मे बी वहाँ ह्यूमिलिएशन बहुत है। मे बी वहां आपके हर दिन सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचाई जा रही है। आपको रोज साइलेंट फियर्स दिए जा रहे हैं। आपकी साइकोलॉजी में एक फियर फैक्टर ज्यादा हावी हो रहा है। तो बहुत सारे इंटरनल स्ट्रगल्स होते हैं। जहां पे हम हैं वहां आप बिल्कुल भी अप्रिशिएटेड नहीं है। आप बिल्कुल भी मतलब जैसे होता है ना, आपका कोई भी काम आपके आप बहुत ऑनेस्टी से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं और आप अपने काम से खुश हो। क्योंकि जब आप सोने जाते हो तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने अच्छे से किया। आई डिड माई बेस्ट फॉर माई वर्क और आई डिड माई बेस्ट द वे आई कुड, एंड यू आर वेरी हैप्पी विद योर सेल्फ। बट द मैनेजमेंट, द योर अपर बॉस इज नेवर सो। एंड खाली ये 6 महीने साल की बात नहीं है, इट्स बीन इयर्स जहां पे आपका इंटरनल स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट चलता ही जा रहा है। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू डिसाइड दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी, दिस इज नॉट वेयर आई बिलोंग टू, दिस इज नॉट वेयर आई शुड बी, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, व्हाट इज माई कॉल? वेल माय डियर फ्रेंड्स, that time we should weigh internally what will give you satisfaction the immediate moment. Because when I had gone through this struggle, I had my plan B ready. For how many days can I survive? What is my backup plan? What else can I do? So, when I started with this journey, it was not so easy. It was not a one day thing, and it was not कि मैं तो कर ही लूंगी. I was equally skeptical, I was equally scared, and I had no fallback. I have nobody to call upon and say that, okay, send me some money because I don't have it for this month. First thing. Second thing, I can't do that. I'm not that type of a person who will call anyone at this point of age and ask for money. That is not justly. So, how do I cope up with my things if I don't have a job and I have certain things to be taken care of? Then you need a plan B. There are lot of struggles, बहुत सारे struggles तो आते हैं, but उसमें satisfaction क्या होता है? अब और नहीं कर पाएंगे, अब यहाँ नहीं कर पाएंगे, अब इसके साथ नहीं कर पाएंगे. Let me have a set B of problems. Let me see something different. तो जब हम different में जाते हैं, maybe a different job, maybe a different work profile, and then we realize this is devil and the deep blue sea. वो कुआं था तो ये खाई है, और सेम स्ट्रगल, सेम पैटर्न, सेम डोमिनेशन. And then you realize that nowhere in the world you go, the pattern won't change. Everywhere the things are the same, the manipulations are the same, the management strategies are similar. तो चेंज क्या है? अंदर से हमें चेंज करना है. या तो हम इसे एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, एंड आई विल कंटिन्यू विद दिस, और have a heart
एंड स्टेप आउट, ट्रेन से उतर जाओ। अब देखते हैं कि कहाँ ले जाती है वो ट्रेन। एक उस समय एक सरेंडर भी था कि ठीक है, कुछ तो कर ही लेंगे और कुछ भी कर सकते हैं कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि लाइफ है, कुछ तो चलेगा ही। So, whenever I got any kind of assignments or any kind of work, I never declined because it gave me independence, because it gave me freedom, and it gave me balance. So, that time, every day, whatever I got, every day, whatever work I got, whatever assignment based it was, I started working on it without looking back, without feeling that I'm not doing great or I'm not making that much money. No, I stopped thinking for that one point of time. Ki nahi, just for today, I have to see what is in my hand and I have to work sincerely. और जिस दिन मेरे पास काम कम होता था या आई वॉज नॉट सो ऑक्यूपाइड, आई वुड इन्वेस्ट माई टाइम इन रीडिंग सो दैट आई कुड मेक बेटर वीडियोज और एनहांस माई नॉलेज. I upgraded myself in a course, so that helped me to keep going each day. अगर हमने कोई टारगेट बना लिया अपना कि हमें तो ना XYZ हमें ये चाहिए हर महीने, बिलीव मी आप अपने लिए एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट कर रहे हो, अनरियलिस्टिक, जिसमें आपको खुद ही नहीं पता है. जैसे ये फ्रीलांसिंग जो है ना, पानी में चलने जैसा है. आप इसमें कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते कहाँ पे पानी डीप है या नहीं, बस आप उस पे सेल करते हो. आप इसमें अपनी एनालिसिस नहीं लगा सकते. और हमें अगर उस फ्लो में आना है तो हमें अपने आप को फ्री भी रखना होगा. बस हमें होपफुल रहना है आज का दिन और ऐसे. और इससे एक चीज और सीखी कि लाइफ बहुत ज्यादा प्लान्ड नहीं होती. लाइफ बहुत ज्यादा एक 5 ईयर रूल के साथ नहीं चलती है. लाइफ एक रूल्स के साथ नहीं चलती, लाइफ फ्लो में चलती है. हमें हमने जब कोई चीज शुरू की, उस समय हमारी नीड क्या थी, उस समय हमारे अंदर की कॉल क्या थी. बहुत साल उसमें इन्वेस्ट करने के बाद हमारी इंटरनल नीड, हमारी इंटरनल डिमांड्स चेंज होती है. जो चीज हम शायद बहुत ज्यादा करना चाह रहे थे, आज की डेट में शायद हम वो नहीं करना चाहते. एंड इट इज वेरी नेचुरल, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट थिंग्स एंड पीपल चेंज. अगर एक पत्थर पानी में रहता है और रहते रहते वो पानी की जो धार है ना, उस पत्थर को काट भी सकती है, उस पत्थर के जो एजेस है उसे सॉफ्ट भी बना सकती है, राउंड भी बना सकती है. तो जो ये जो लाइफ है ना, ये पानी जैसी है. तो ये हमारे ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है हमें नहीं पता है. हो सकता है जो चीज हम बहुत डेस्परेटली करना चाहते थे, आज हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, या आज हम उसी के हिसाब से हम एकदम ब्लेंड हो गए हैं. तो ये लाइफ आपको बना रही है, इसमें हमें कंपैरिजन भी नहीं करना. यार वो तो कर पा रहे हैं, सारे चेंजेस क्या मुझी में आने हैं. देखिए, हमारा जो इंटरनल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है थिंकिंग का, सोच का, अपब्रिंगिंग का, सराउंडिंग का, हमारे इनर सेल्फ का, तो वो ही डिसाइड करता है कि हमारी चेंजेस जो आ रहे हैं, हमारी चॉइसेस वही बनी. बस हमें डिफरेंस ये रखना है कि हमें उस इंटरनल चेंजेस के साथ चलते जाना है. आई विल टेल यू वन एक्सपीरियंस. एक टाइम था, आई वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. विद एज हम इमेच्योर भी होते हैं. एक टाइम होता है हम कुछ भी करते हैं और करने के बाद सोचते हैं. फिर एक टाइम आया कि कुछ करने से पहले डर लग रहा है. फिर एक टाइम आया कि सोच के काम कर रहे हैं या एक बैलेंस में काम करते हैं, एक जुनून में काम नहीं कर रहे, एक जुनून में डिसीजंस नहीं ले रहे, एक बैलेंस में डिसीजंस ले रहे हैं, उनको प्रॉपरली इंटरनल कॉल के साथ कि ठीक है, आज की ये कॉल है और इसके साथ अब मुझे कैसे रहना है, या अब मैंने ये डिसाइड किया है तो अब इस डिसीजन के साथ मुझे आगे कैसे ग्रो करना है. और ये एज, एक्सपीरियंस और मेच्योरिटी से ही आता है. सो इफ यू आर इन योर 20s एंड 30s, यू विल बी एट अ डिफरेंट लेवल.
So there is no comparison, but with experience, you learn, with your own understanding, you develop these things. Then जब आप बहुत वे करके डिसीजंस लेते हैं, आप बहुत प्रोसेसिंग में जाते हैं, ये होता है, ऑप्शन ए है तो क्या होगा, और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ऑप्शन बी आपने ये लिया तो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब उसके बाद आप अपने अंदर सोचते हो कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है। जैसे कई बार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई बोलता है ये खाना है या वो खाना है, मन तो दोनों का ही है या भूख उतनी ही नहीं है, फिर आपको जो ज्यादा मन करता है ना, या ये मैंने बहुत नहीं खाया है या बहुत दिन बाद खा रही हूँ, तो हम वो ऑर्डर करते हैं। सिमिलरली इन लाइफ, कई बार हम वो चीजें करते हैं जो हमने कभी नहीं की, या फिर हम वो करते हैं जो अंदर से ना एक सुकून सा दे रहा है कि नहीं यार ये करते हैं। आई थिंक आई कैन मैनेज विद दिस ऑल्सो। I think I will be able to work in less money, but it should be of my choice. It should be of my level, and I should have that freedom and independence in my work arena. तो हमें डिसीजंस ऐसे लेने चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सेकंड थिंग, जब मैं जॉब ए में थी, so I was like, okay, I learned a lot of things there and I groomed myself as a professional. But over the period of years, I got like, no, I need a change. I need to explore. I need to have a better work culture. When I switched to job B, I realized that the work culture was more or less the same. And what I realized is that whenever there was a scolding for a small mistake, whenever there was something which was not as per the rule, I would say, my gut went into a toss. My intestine would squeeze. मैं अपने जो सोलर फ्लेक्स होता है उस पे एक स्क्वीज सा फील करती थी। Or if anybody would say, Jasleen, ma'am, you have done this, and suddenly a pull would take place, which was negative, which was not giving me a happy feeling, and it would pull out all the juice from my system. Now, what was the repercussion of that? इवेंचुअली आई गॉट अ वेरी स्कैरी पर्सनालिटी। मेरे अंदर इंटरनल एक फियर इकट्ठा होता गया सिचुएशन को लेके, कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, कोई कुछ कह ना दे, किसी की बात ना सुननी पड़ जाए। अब उसके बाद आपके हेल्थ इश्यूज आने लग गए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम टॉल पे चला गया, आपके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो गए, आपके मूड पैटर्न्स डिस्टर्ब हो गए, आपकी परफॉर्मेंस डिप होती गई। आप अपने अंदर एक इरिटेशन और एग्रेशन को फील कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने एक चॉइस की कि आपने सोचा यहाँ बेटर होगा, वो नहीं था, या वो आपके हिसाब से आपको बेटर नहीं लगा, आपने सोचा था बेटर अंदर से लगेगा। और मैं देख रही हूँ कि सब तो खुश है, या मुझे वैसा क्यों नहीं लग रहा जैसे सबने कहा था, मुझे उतना अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। एंड देन आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट फॉर मी, and I cannot retire in this place if I continue, because I will have to kill myself, my internal being, that Jasleen which wanted to be independent. I can't. And then I realized that no, I have to step out. तो मुझे हटना पड़ा। और वो जो संघर्ष था, कैसे करना है, हम बाकी चीजें कैसे करेंगे, कुछ बहुत दिन तक चला। बात की अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, समझ नहीं आ रहा था, और धीरे धीरे फिर लगा नहीं, अब हम इस पे करते हैं। एंड इनिशियली 6 मंथ्स अपने आप को, मैं ये नहीं कहूंगी दैट ट्रांजिशन वाज वेरी स्मूथ, मुझे पता ही नहीं चला, सब अपने आप होता गया, नहीं, ईच डे केम अप विद मोर चैलेंज। आई वुड रीड अ लॉट, मैं अदर फ्रीलांसर्स के एक्सपीरियंसेस शेयर करती थी, आई वॉज ओपन टू वर्क, मैं देख रही थी वहां कहाँ बेटर होगा, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, जो आपको मिल रहा है, जो आप अपना बेस्ट कर सकते हो, वो आप करते जाओ, अपने काम में ऑनेस्टी निभाते जाओ और सरेंडर में रहो कि जो आपको ईश्वर आपके प्लेट पे दे रहे हैं वो आपके लिए। एंड इवेंचुअली यू सी द चेंज, इवेंचुअली यू सी द डिफरेंस।
एंड इट्स बीन 2 years नाउ. सो मैंने वो 9 महीने की जर्नी शेयर की. जैसे जब मुझे रेजिग्नेशन देना था, ऐसे नहीं था कि मैं उठी, मैंने सोचा कि अब मुझे कंटिन्यू नहीं करना. ऐसे नहीं था. बहुत कश्मकश चला, बहुत अंदर से चला. अब क्या, अब क्या, एक जगह से तो हो गया, क्या अब शहर बदलना पड़ेगा, क्या शहर बदलने से कुछ होगा. फिर बहुत सारी चीजें समझ में आई कि हर जगह एक ही पैटर्न है, एक ही लेवल है. और जब मैंने इंडिपेंडेंटली स्टैंड लिया, उसमें भी चैलेंजेस आए, बट उसमें मुझे सुकून ज्यादा मिला. मैंने अपना एक पैटर्न बनाया मेरे वर्क आवर्स का और मेरे सेल्फ आवर्स का. And then it helped me to give me a balance. Now I'm able to do lot of things which I was not able to do earlier. One very basic thing if I share is I'm able to cook every day and eat fresh food. This was a luxury in my life earlier. I would cook something very healthy and light and eat. But now I can, enjoy proper food with good health. My health is much better now. I'm emotionally, mentally very balanced. Though I have been practicing meditation, but when I was stuck, I was not able to cope up with with it. Then I realized that this is not my call. तो मुझे मेडिटेशन से बैलेंस और क्लैरिटी तो मिली, और एक अंदर की आवाज जो थी कि ये नहीं है तुम्हारे लिए, यू आर नॉट फॉर दिस प्लेस, उसने मुझे स्ट्रेंथ दी. क्योंकि जब आपके पास अदर थॉट्स नहीं होते, तब आप अपनी अंदर की आवाज सुन पाते हो. जो अदर थॉट्स होते हैं वो आपको ऑप्शंस देते हैं, कैसे करोगे, क्यों करोगे, डराते हैं आपको, एंजाइटी इश्यूज होते हैं. तो आज की जो मेरी लाइफ है, मेरा एक रूटीन है, मेरी एक सेल्फ हेल्प है, हीलिंग है, मेरे पास एक एक्सरसाइज के लिए टाइम है, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले जो मेरा टाइम होता था ना, जो मेरा फ्री टाइम होता था, वो या तो मेरी स्लीप के लिए होता था, या फिर वो मुझे अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, या मुझे कुछ नहीं करना है. बट अभी जो मेरा फ्री टाइम होता है, जो अर्ली मॉर्निंग का होता है, जो लेट इवनिंग्स का होता है, वो मेरा होता है. उसमें मैं रिलैक्स कर सकती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कैचअप करती हूँ. मैं इंटरनली कनेक्टेड और पीसफुल रहती हूँ. जो वो पीस मेरी पूरी बीइंग को कंप्लीट कर रहा है. स्टार्टिंग में मैंने कुछ चीजों पे कट डाउन भी किया, एक्स्ट्रा खर्चों पे कट डाउन किया, पर उसने मुझे इंटरनली सपोर्ट किया. उन चीजों के कट होने से मेरी इंटरनल ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं आया, बल्कि उसने मुझे और स्ट्रांग बनाया कि हाँ, हम इन चीजों के बिना भी रह सकते हैं, या ये चीजें अगर हमने कुछ दिनों तक नहीं की तब भी हम सही रह सकते हैं. और फिर मैंने रियलाइज किया कि हमने कितनी अपनी बॉडी के साथ गलत किया. जैसे कि बाहर खाना खाना, हम खाने, मेरे लिए फूड एक मेडिसिन की तरह भी है. पर उस समय क्या था, आज कुकिंग का मन नहीं है तो लेट्स गो आउट एंड ईट, चलो बाहर खा लिया, क्विक एंड इजी. बट नाउ व्हाट इफेक्ट इट हैज ऑन योर बॉडी. द फूड इज नॉट वेरी फ्रेश विच इज कुक्ड आउट फ्रॉम आउटसाइड. And whenever you eat, the restaurant people very nicely say, "Ma'am, we don't have any healthy options. We have good options." So everything comes with a lot of cheese, butter. So आपने अपनी सबसे पहले हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया. और जब मैंने फ्रीलांसिंग में स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहले बाहर का फूड कट डाउन किया कि आई विल ईट होम मेड एंड हेल्दी फूड, which saved money also and which helped me to give a good health. And later on, I realized that how much exploitation I've done to my body. That was my that is an abuse to my body. And now I realize that yes, it was a good choice which I made. And after 2 years, I stand before you and I want to tell you that I'm the most happiest person. I was not able to cope up with the struggles there internally. Now I am a peaceful person. My choices are straight. My head is balanced, and my sleeps are good.
So I hope this video gives you strength to take charge of your life. This video helps you to get clarity on how you have to cope up, what you have to do, and connect with your inner self, so that if you're not happy, you know how to check. आप अगर अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप खुश नहीं हो, तो आपको देखना है कि ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, वो क्या मिसिंग है आपकी लाइफ में जो आपको अच्छा नहीं फील करा रहा है। और ये जो इंटरनल चेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।